नहीं कुछ बदलना, समझ लो मेरी गल। ਆਪਾਂ ਦਾ ਲੰਗਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੇ ਲੰਗਰ ਦੀ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ 14 ਅਪ੍ਰੈਲ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟ ਦਿਵਸ ਦਾ। ਕੁਝ ਲੋਕ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਬਾਹਰ ਹੀ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ ਭਿਖਾਰੀ, ਉਹ ਸਵੇਰ ਦਾ ਲੰਗਰ ਵੀ ਖਾਂਦੇ ਸ਼ਾਮ ਦਾ ਵੀ ਖਾਂਦੇ, ਫਿਰ ਵੀ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਭਿਖਾਰੀ ਰਹਿੰਦੇ। ਲੰਗਰ ਦਾ ਨਹੀਂ ਬਦਲਣਾ ਤੇ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ ਬਦਲਣਾ। ਆਪਾਂ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਅੰਬੇਦਕਰ ਨੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨਾਲ ਬਦਲਿਆ ਸੀ। ਸੰਘਰਸ਼ ਵੀ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਨਹੀਂ। ਤੁਹਾਡਾ ਪਤੀ ਤਾਂ ਅਗਰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਲੇਟ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਬਰਸਾਤ ਸੀ ਕੱਲ, ਕਿੰਨੀ ਤੇਜ਼ ਬਰਸਾਤ ਸੀ, ਉਦਾਂ ਦੀ ਬਰਸਾਤ 'ਚ ਕੋਈ ਫਸ ਵੀ ਸਕਦਾ ਕਿਤੇ। ਤੁਹਾਡਾ ਪਤੀ ਅਗਰ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਨ ਗਿਆ ਫਸ ਗਿਆ ਨਾ ਕਿਤੇ, ਸਵੇਰੇ ਹੀ ਆ ਰਿਹਾ, ਇੰਨੇ ਚ ਜਨਾਨੀ ਨੇ ਲੜ ਪੈਣਾ। ਲੈ ਹੁਣ ਰਾਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬਾਹਰ ਰਹਿਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ 10-11 ਵਜੇ ਆ ਹੀ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਹੁਣ ਰਾਤ ਵੀ ਬਾਹਰ ਹੀ ਲਾ ਦਿੱਤੀ। ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਅੰਬੇਦਕਰ ਨੇ ਤਾਂ ਆਪਣੇ 4 ਬੱਚੇ ਕੁਰਬਾਨ ਕੀਤੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਫਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਮਾਂ ਨੇ ਸਾਰੀ ਫਾੜਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਾਈ, ਕਫਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮਿਲਿਆ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਅੰਬੇਦਕਰ ਦੇ ਬੱਚੇ। ਉਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਜ ਆ ਮਾਈਕ ਲਗਾ ਕੇ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਸਾਨੂੰ। ਆਪਾਂ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨੀ ਬੇਬਾਕੀ ਨਾਲ ਬੋਲ ਰਹੇ ਆਪਣੀ ਗੱਲ, ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਖੌਫ ਤੋਂ। ਇਹ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਅੰਬੇਦਕਰ ਨੇ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਆਪਣੇ 4 ਬੱਚੇ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰਕੇ, ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰਕੇ। ਪਤਨੀ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਸੇ ਹਾਲਤ 'ਚ ਗਈ, ਪਰ ਜਾਣ ਲੱਗੇ ਅੰਤਿਮ ਗੱਲ ਕੀ ਕਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਤਨੀ ਨੇ? ਕੀ ਨਾਮ ਸੀ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਅੰਬੇਦਕਰ ਦੀ ਪਤਨੀ ਦਾ? ਬੋਲੋ। ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਥੋੜਾ ਯਾਦ ਹੈ। ਇਹ ਮਾਂ ਵੀ ਯਾਦ ਹੈ ਸਾਨੂੰ। ਮਹਾਮਾਈ ਯਾਦ ਸੀਗੀ ਪਹਿਲੋਂ, ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਮਾਂ ਰਮਾਬਾਈ। ਔਰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਮਾਂ ਰਮਾਬਾਈ? ਅੰਤਿਮ ਸਮੇਂ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਜਾਈਏ ਨਾ ਤਾਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਘਰ ਯਾਦ ਆਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਆ ਵੀ ਆ ਛੱਤ ਬਦਲਣੀ ਸੀ, ਕੁੜੀ ਵੱਡੀ ਹੋ ਗਈ, ਮੁੰਡੇ ਦਾ ਫੀਸ ਦੇਣੀ ਸੀ, ਮੈਂ ਬਿਮਾਰ ਪੈ ਗਿਆ। ਪਰ ਮਾਂ ਰਮਾਬਾਈ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ? ਅੰਤਿਮ ਸਮੇਂ ਵੀ ਮਾਂ ਰਮਾਬਾਈ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ 7 ਕਰੋੜ ਅਛੂਤ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖੋ। ਉਦੋਂ ਵੀ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇਹੀ ਤਾਕਤ ਦੇ ਰਹੀ। ਉਦੋਂ ਸਾਡੀ ਗਿਣਤੀ 7 ਕਰੋੜ ਅਛੂਤ ਹੈ ਜਦੋਂ ਮਾਂ ਰਮਾਬਾਈ ਦਾ ਦੇਹਾਂਤ ਹੋਇਆ। ਇੰਨੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੇ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਅੰਬੇਦਕਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਵੀ ਲੱਗ ਰਹੇ ਸੀ। ਅਖਬਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੱਦਾਰ ਲਿਖ ਰਹੇ ਸੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਦੇਸ਼ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਿਹਾ ਔਰ ਇਹ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਫੁੱਟ ਪਾ ਰਿਹਾ। ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਅੰਬੇਦਕਰ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਫੁੱਟ ਪਾ ਰਹੇ। ਫੁੱਟ ਤਾਂ ਹੁੰਦੀ ਨਾ ਕਿ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਅੰਬੇਦਕਰ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਟੁਕੜਾ ਬਣਾਉਂਦੇ। ਉਹ ਟੁਕੜਾ ਥੋੜੀ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਇੱਕ ਮਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੋਚ ਰਹੇ ਸੀ। ਜਿੱਦਾਂ ਮਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਰੋਟੀ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਾ ਬਿਮਾਰ ਪਿਆ ਉਹਦਾ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਧਿਆਨ ਹੁੰਦਾ, ਮਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਦਵਾਈ ਵੀ ਦੇਣੀ ਆ, ਉਹ ਬਿਮਾਰ ਆ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਦੇਖਣਾ ਹੈ। ਜੇ ਘਰ 'ਚ ਬਜ਼ੁਰਗ ਕੋਈ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਯਾਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਵੀ ਇਹਦੇ ਦਾਦਾ ਜੀ ਉਧਰ ਬੈਠੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਚਾਹ ਪਹੁੰਚਾਣੀ ਆ। ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਅੰਬੇਦਕਰ ਤਾਂ ਏਦਾਂ ਸੋਚਦੇ ਸੀ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਬਿਮਾਰ ਕੌਮ ਆ, ਬਿਮਾਰ ਕੀ ਸਮਾਜਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਬਿਮਾਰ, ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਬਿਮਾਰ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਪੰਚਾਇਤ 'ਚ ਬਹਿਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਜੇ ਮੰਜਾ ਢਾ ਕੇ ਕੋਈ ਬੈਠਾ ਤੇ ਸਾਡੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਉੱਠ ਕੇ ਖੜੇ ਹੋਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ ਮੰਜੇ ਤੋਂ, ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਲੰਘ ਰਿਹਾ ਤੇ ਮੰਜੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਬੈਠੇ ਰਹਿਣਾ। ਹਾਲੇ ਵੀ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਪਿੰਡ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਔਰਤਾਂ ਗਹਿਣਾ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦੀਆਂ, ਸਾਡੀਆਂ ਔਰਤਾਂ, ਮੁੰਡੇ ਘੋੜੀ ਨਹੀਂ ਚੜ੍ਹ ਸਕਦੇ। ਆਉਂਦੀਆਂ ਨਾ ਖਬਰਾਂ ਰੋਜ਼ ਹੀ। ਅੱਜ ਵੀ ਇਹ ਹਾਲਤ ਹੈ। ਇੰਨੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗ ਰਹੇ ਸੀ, ਗੱਦਾਰ ਲਿਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਬੜੇ ਬੜੇ ਲੀਡਰ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਗੱਦਾਰ ਲਿਖ ਰਹੇ ਸੀ, ਪਰ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਅੰਬੇਦਕਰ ਘਬਰਾਏ ਨਹੀਂ। ਘਬਰਾਏ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰਾ ਸੱਚ ਪਤਾ, ਮੈਂ ਗੱਦਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਅੱਜ ਨਵੀਂ ਖਬਰ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਬੈਂਕ ਡੁੱਬ ਗਿਆ ਦੇਸ਼ ਦਾ, ਤੇ ਪਕੜਿਆ ਕੌਣ ਗਿਆ ਹੈ? ਅੱਜ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਆਇਆ ਟੀਵੀ 'ਚ। ਪਕੜਿਆ ਕੌਣ ਗਿਆ? ਕਪੂਰ। ਦੱਸੋ ਕਿ ਦਲਿਤ ਨੇ ਬੈਂਕ ਡੁਬੋਇਆ? ਦਲਿਤ ਨੇ ਨਹੀਂ ਡੁਬੋਇਆ। ਜਦੋਂ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਮਰਨ 10 ਬੰਦੇ, 10 ਚੋਂ 8 ਦਲਿਤ ਹੁੰਦੇ, 10 ਚੋਂ 8 ਦਲਿਤ ਹੁੰਦੇ। ਦਲਿਤ ਤਾਂ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੇ ਰਹੇ, ਲੜ ਰਹੇ ਆ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲਈ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਜਸੂਸ ਪਕੜੇ ਗਏ। ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ 8 ਜਸੂਸ ਪਕੜੇ ਗਏ ਆ।
सारे मीडिया ने खबर छुपाई, वो तो सुप्रीम कोर्ट के वकीलों ने उन्हें ट्विटर छुपाया। 8 जसूस पकड़े गए आ, 8 दे 8 ही ब्राह्मण ते बाणीए सी, कोई दलित नहीं सी। आ जिहड़ी कुड़ी दी दे नाल बेअदबी का केस चल रहा है, जिन्होंने फांसी होनी है, 2-3 बारी फांसी टल गई, उन्होंने नाम भी पढ़ो की है, सारे नाम पढ़ो, पिछे लिखे आ रहा शर्मा भी, गुप्ता भी, सारे है। बाबा साहब अंबेडकर को सच पता सी, वो कहते मैं गद्दारी नहीं कर रहा, मैं एक कौम को ताकत दे के देश को ही ताकत दे सकता। जे दलित ताकत वाला होएगा तो देश सुरक्षित रहेगा। पूरी बड़ी मिसाल दस रहा, एक देश एक आदमी आया करता सी, कोई लुटेरा जिन्हें 17 बार सोमनाथ का मंदिर लुटिया। नाम याद है बच्चों को? सोमनाथ का मंदिर किहने लुटिया सी? एनी हिस्टरी याद रखा करो, भुल जाते देख लो। फिर हम पेपर भी चलते पे है, नाल पेपर की तैयारी भी है, मैं करा रहा। 17 बार लुटिया। और सोमनाथ का मंदिर कितने देखो, हैरान होंगे तुम, वो कितों आता सी? जरा अज पाकिस्तान है, इंडिया ही सी, उतों शुरू होता सी अफगानिस्तान के बॉर्डर तो, पूरा इंडिया लंघ के लाहौर, अमृतसर, पूरा पंजाब लंघ के, हरियाणा, दिल्ली लंघ के, गुजरात जाके है सोमनाथ मंदिर। देखो कितों आना ते कित्थे लुटना, ते लुट के सारा समान चुपचाप निकल भी जाना, कोई रोकना ही नहीं सुनू। तो उस दिन की होया, आ रहा हम होला महला आ रहा, उस दिन छोला महला हो गया और गुरु गोबिंद सिंह तलवार चक के खड़े हो गए संगत के विच आके। वो कहते मैनू अज कुर्बानी चाहिए। कितने बंदे उठे पूरी संगत चो? 5। ते 5 कौन सी? 5 ही दलित सी, 5 ही दलित खड़े हुए। ते साडी कौम का सूरमा पहलों ही नाल सी, अमर शहीद बाबा जीवन सिंह। ते अमृत की दिता? अमृत की दिता? अमृत सब तो बड़ी चीज दी, कृपान बख्शी। पहलों कृपान किहदे को हुंदी सी? सिर्फ क्षत्री को। कृपान ते अधिकार सी भी बनिया भी चक सकदा, ते बामण भी नहीं चकूगा। सिर्फ क्षत्री कृपान रखेगा, बनिया व्यापार करेगा, ते पंडित बाकी सारे लोगों को मूर्ख बना के लुटेगा। पहली बार गुरु गोबिंद सिंह ने दलितां दे हत्थ तलवार दी, ते 18वीं बार जदों सोमनाथ का मंदिर लुटिया गया, उत्थे दा दरवाजा भी मार लिया, चांदी का दरवाजा सी। जदों लैके वापस जा रहे सी ते हुण तलवार किहदे हत्थ सीगी? दलितां दी। ते इत्थे ही रोकिया पंजाब की धरती ते, खोलिया दरवाजा उहदे कोलों। अज वो दरबार साहब की दर्शनी ड्यूटी ते लग्या होया। यही गल बाबा साहब अंबेडकर सोच रहे थे कि जे दलित नूं कलम दोगे, इहनूं पढ़न लिखण का अधिकार दोगे, तो देश होर मजबूत होएगा, देश और मजबूत होएगा। ते बाबा साहब अंबेडकर ने गद्दार गद्दार कहने ते कोई परवाह नहीं, ईवन कि अपने बच्चों की कुर्बानी भी देंदे रहे, तां भी आंसू नहीं गिरन दिता। और अज बिल्कुल उदां दी स्थिति फिर दोबारा हो। एक पासे तो सरकार सीए, NRC, NPR ये लिया रही है, उसका मतलब पता की? सीए का की मतलब होगा? दोबारा तो जांच होनी तुहाडी भी ते मेरी भी तुसी सचमुच भारत दे हैगे हो कि नहीं है। लियाओ 70-80 साल का रिकॉर्ड लियाओ। ते असीं तां पिंडां च इदां दे बैठे हैं जिन्हां दे मकानां दीयां रजिस्ट्रियां ही नहीं है, पंचायत ने अलॉट कर दिया, पटवारी लिख के दे गया, बस अन्नी की जगह लाला इक्का तेरी है, बस दिता कुछ नहीं, लिखत पढ़त कुछ नहीं, बैठे। देखो सरकार ने वोटां पवा के सरकार बन गई, साडी वोट नाल। हुण सानू पुछोगे भी तुसीं इत्थे दे हैगे कि नहीं हैगे। छोटी दी खेल नहीं है, बहुत बड़ी खेल है। और आखिर च की कहोगे, तुसीं इत्थे दे नहीं हैगे जे ते चलो देश तो बाहर, या एक जेलां बनणगीਆਂ स्पैशल जिथे सीधे नहीं तुरना, गोडे भार तुरना पेगा,
ਜਾਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਪਾਵਾਂਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ? ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਕਹਾਂਗੇ ਅੱਛਾ ਜੀ ਅਸੀਂ ਹੱਥ ਜੋੜਦੇ ਆ, ਨਾ ਤਾਂ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਪਾਓ, ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਬਾਹਰ ਭੇਜੋ, ਬਾਕੀ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਸਾਨੂੰ ਨਾ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਦਿਓ, ਨਾ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਦਿਓ, ਨਾ ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਸਕੂਲ ਮੰਗਾਂਗੇ, ਨਾ ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵੋਟ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਵਾਂਗੇ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਰਹਿ ਲੈਣਾ। ਇਦਾਂ ਵਿਚਾਰਾ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਦੁਬਾਰਾ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਲੜਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਹੈ, ਪਰ ਉਸ ਲੜਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਲੜਾਈ ਫੇਰ ਆ ਗਈ ਜਿਹੜੀ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਅੰਬੇਦਕਰ ਦੀ, ਜਿਹੜੀ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਅੰਬੇਦਕਰ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਹੇ ਸੀ ਦਲਿਤਾਂ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਦੀ। ਅੱਜ ਉਹ ਲੜਾਈ ਆ ਗਈ ਵਾਲਮੀਕੀ ਮਜ਼੍ਹਬੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ। ਅੱਜ ਹੀ ਇਹ ਲੜਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੜਾਈ ਆ ਗਈ, ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹੀ ਸਿੱਧੀ ਖੜੀ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਆਪਾਂ ਉਹ ਲੜਾਈ ਲੜਨੀ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਲੋਕ ਅੱਜ ਆ ਕੇ ਉਦਾਂ ਹੀ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਅੰਬੇਦਕਰ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿਣਗੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਦਾਰ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਲੜਾਈ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਲੜਾਈ ਛੱਡਦੀ, ਤੁਸੀਂ ਦਲਿਤਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਛੱਡਦੀ, ਤੁਸੀਂ ਕੱਲੀ ਵਾਲਮੀਕੀ ਮਜ਼੍ਹਬੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਅਸੀਂ ਕੱਲੀ ਉਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਅਸੀਂ ਉਹੀ ਕਰਨੀ ਜਿਹੜੀ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਅੰਬੇਦਕਰ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਿਖਾਈ। ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਅੰਬੇਦਕਰ ਨੇ ਲੜਾਈ ਕਿਹੜੀ ਲੜੀ ਸੀ? ਰੈਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਦੀ। ਉਹਦਾ ਆਧਾਰ ਕੀ ਬਣਾਇਆ ਸੀ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਰੈਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਉਹਦੇ ਲਈ ਹੈ, ਕੋਟਾ ਉਹਦੇ ਲਈ ਹੈ ਜਿਹਦੀ ਨਾ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਤਾਕਤ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਨਾ ਸਮਾਜਿਕ ਤਾਕਤ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਨਾ ਆਰਥਿਕ ਤਾਕਤ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਕਿਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਗਿਣਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਕੋਟਾ ਬਣਾਓ। ਤੇ ਅੱਜ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਹੀ ਗਿਣ ਲਓ, ਬਾਕੀ ਛੱਡੋ, ਪੰਜਾਬ ਹੀ ਗਿਣ ਲਓ, ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਵਾਲਮੀਕੀ ਮਜ਼੍ਹਬੀ ਭਾਈਚਾਰੇ 'ਚੋਂ 3 IAS ਵੀ ਲੱਭ ਸਕਦੇ ਔਰ ਬਾਕੀ ਦਲਿਤਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਗਿਣੋਗੇ ਤਾਂ 100 ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਦਲਿਤਾਂ ਤੋਂ 100 ਤੋਂ ਉੱਪਰ, ਸਾਡੇ 3 ਵੀ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਔਰ ਪਿਛਲੇ 2 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲੋਂ 17 ਪੋਸਟਾਂ ਸਾਡੀਆਂ PCS ਦੀਆਂ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਘਾਲ-ਮੇਲ ਕਰਕੇ ਉਹ 17 PCS ਵੀ ਖਾ ਗਏ। ਯਾਨੀ 17 ਮੁੰਡੇ ਸਾਡੇ, ਕੁੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ SDM ਲੱਗਣੀਆਂ ਸੀ। PCS ਦਾ ਮਤਲਬ SDM ਘੱਟੋ ਘੱਟ, ਉਹ ਪੋਸਟਾਂ ਵੀ ਖਾ ਗਏ। ਹੁਣ ਉਹ ਪੋਸਟਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਵੀ ਨਾਲ ਲੜਨੀ ਹੈ, ਆਪਣੇ 12.5% ਹਿੱਸੇ ਦੀ ਲੜਾਈ ਵੀ ਨਾਲ ਲੜਨੀ ਹੈ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਲੜਾਈ ਵੀ ਨਾਲ ਲੜਨੀ। ਉਹ ਲੜਨ ਦੀ ਤਾਕਤ ਆਪਾਂ ਰੱਖਦੇ। ਆਪਣਾ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇਖਾਂਗੇ ਤੇ ਸਾਡਾ ਇਤਿਹਾਸ ਇਕਲਵਿਆਂ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ, ਜਿਹਨੇ ਕੱਲੇ ਇਕਲਵਿਆਂ ਨੇ ਮਹਾਭਾਰਤ ਦਾ ਯੁੱਧ ਜਦੋਂ ਜਿੱਤਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਰਜੁਨ ਵਾਪਸ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਜਿੱਤਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੱਲੇ ਇਕਲਵਿਆਂ ਨੇ ਘੇਰ ਲਿਆ ਸੀ। ਕੱਲੇ ਇਕਲਵਿਆਂ ਨੇ ਅਰਜੁਨ ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਫੌਜ ਨੂੰ ਘੇਰ ਲਿਆ ਸੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਉਦਾਂ ਦਾ ਲਾਕੂਸ ਦੀ ਸਟੋਰੀ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹਾਂ ਵੀ ਇਕੱਲੇ ਹੀ ਲੜੇ ਸੀ ਦੋਨੋਂ ਮੈਦਾਨ 'ਚ, ਤੇ ਇਕਲਵਾ ਵੀ ਇਕੱਲਾ ਹੀ ਸੀ ਔਰ ਅਰਜੁਨ ਨੂੰ ਘੇਰ ਲਿਆ ਸੀ ਇਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ। ਵੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸਮਾਂ ਹੋਰ ਸੀ ਕਿ ਮੂਰਖ ਬਣਾ ਕੇ ਮੇਰਾ ਅੰਗੂਠਾ ਲੈ ਲਿਆ। ਅੱਜ ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਅੰਗੂਠਾ ਨੂੰ ਕੱਟਿਆ ਵੀ ਹੋਇਆ ਆ, ਆਮਣ ਸਾਹਮਣ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰ। ਤੇ ਹੋਇਆ ਕੀ? ਇਹ ਮਹਾਭਾਰਤ ਦੀ ਕਥਾ ਪੰਡਤ ਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੁਣਾਣੀ, ਆਹ ਲਾਈਨ ਨਹੀਂ ਸੁਣਾਣੀ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਹੋਇਆ ਕੀ ਕਿ ਅਰਜੁਨ ਸਮਾਨ ਦਾ ਸਮਾਨ ਜਿਹੜਾ ਲੁੱਟ ਕੇ ਲਿਆਏ ਸੀ ਜਿੱਤ ਕੇ, ਆਪਣਾ ਤੀਰ ਕਮਾਨ ਵੀ ਸੁੱਟ ਕੇ ਭੱਜਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਲਿਖਿਆ ਸੂਰਦਾਸ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਆ, ਪਰ ਉਹ ਲਿਖਿਆ ਉਹਨੇ ਬਦਲ ਕੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਸਾਡੇ ਦਿਮਾਗ ਨੂੰ ਬਦਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਸਾਡੇ ਦਿਮਾਗ ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਕੰਟਰੋਲ ਕਿੱਦਾਂ ਰੱਖਦੇ? ਵਹਿਮਾਂ ਭਰਮਾਂ 'ਚ ਪਾ ਕੇ। ਤੁਹਾਡਾ ਕਹਿੰਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਖਰਾਬ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਡਰ ਜਾਂਦੇ। ਆ ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਚਾ ਮੰਗਲੀਕ ਹੈ, ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦਾ ਬੱਚਾ ਤਾਂ ਮੰਗਲੀਕ ਅਜੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਕੋਈ। ਜਿੱਥੇ ਜਾਣ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਤਰਸਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੱਚਾ ਕੋਈ ਮੰਗਲੀਕ ਹੋਇਆ? ਸਾਡੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਪੰਡਤ ਐਡਾ ਉਹ ਮਲਾ ਕੇ ਕਰਦਾ ਆ, ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨੂੰ? ਜਨਮ ਪੱਤਰੀ, ਹਨਾ? ਮੁੰਡੇ ਤੇ ਕੁੜੀ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮਿਲਾਉਂਦਾ ਆ। ਤੇ ਆ ਬੀਬੀਆਂ ਬੈਠੀਆਂ ਮੇਰੀਆਂ ਬੇਟੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਿਆਹੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਦੱਸੋ 6 ਮਹੀਨੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਗਹਿਣੇ ਬਚੇ ਸੀਗੇ ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ? ਪੰਡਤ ਨੇ ਗ੍ਰਹਿ ਤਾਂ ਬੜੇ ਬਣਾਏ ਸੀ ਕਿ ਬੜਾ ਸੋਹਣੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮਿਲ ਗਏ, ਬੜੇ ਸੋਹਣੇ ਮਿਲ ਗਏ, ਗਹਿਣੇ 6 ਮਹੀਨੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਚੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ।
2 महीने तो वध रोटी नहीं मिलती सुख दी। 2 महीने भी रोटी केड़ी, ਜਿਹੜੀਆਂ ਰੋਟੀਆਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਭੂਆ ਦੇ ਘਰ ਜਾ ਰਹੀ ਜੀ ਜੋੜੀ, ਨਵੀਂ ਵਿਆਹੀ ਜੋੜੀ, ਮਾਮਾ ਸਹੁਰੇ ਨੇ ਬੁਲਾ ਲਿਆ, ਹੁਣ ਮਾਸੀ ਸੱਸ ਨੇ ਬੁਲਾ ਲਿਆ। 2 ਮਹੀਨੇ ਵਿਚਾਰੇ ਢਗਾਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਂਦਾ। ਘਰ ਆਉਂਦੇ ਹੀ ਮਾਂ ਪਿਓ ਕਹਿੰਦੇ ਚੱਕੋ ਭਾਂਡੇ ਆਪਣੇ ਅਲੱਗ ਹੋ ਜਾਓ। ਪੰਡਤ ਨੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮਿਲਾਏ ਸੀ। ਇਹ ਕਾਹਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮਿਲਾਏ, ਕਿਹੜੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮਿਲੇ? ਪਰ ਸਾਡਾ ਦਿਮਾਗ ਖਰਾਬ ਹੋਇਆ ਹੋਇਆ, ਅਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਸ਼ਾਇਦ ਇਦਾਂ ਹੀ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਸੂਰਦਾਸ ਨੇ ਇਹੀ ਲਾਈਨਾਂ ਲਿਖੀਆਂ ਉੱਥੇ। सूरदास की कह रहा है, कहना समय समय की बात है, समय बहुत बलवान, वही अर्जुन वही गोपियां वही धनुष वही बाण। कहने समय बलवान सी तां बेचारा अर्जुन नूं भजना पै गया। समय नहीं, मुकाबला सामने दा सी। जे पिठ पिछों वार करने का मौका मिलता तो अर्जुन ने भारी पैना सी, क्योंकि पिठ ते आपां वार करना नहीं सी ते उन्होंने हटना नहीं सी, फिर वो भारी पैने सी। अज भी साडे बच्चे थोड़ा जिहा पिंड च सिर कढ़दे आ, नौकरी वालों, पढ़ाई वालों, राजनीति वालों, तो उन्होंने भी पिठ ते इदां ही जिथे जिथे पिंड च सरपंच चुनिया जाता उन्होंने काम ही नहीं करन दिंदे, ਉਹਦੇ खिलाफ RTI पाई रखते हैं। ਇਹਦੀ जी आह गल गलत है, ने फलानी गली गलत बनाती। तो ये जो सरपंच रहते सारिया गलियां इन्हां दियां ही बनदियां, साडियां बनदियां ही नहीं उदों। तो साडा सरपंच बने तो RTI पैंदी है। ਆਪਾਂ फिर भी पंडित तो दिन कढ़ाई जाने कि जी कुड़ी का ब्याह करना दिन कर दो, भी पंडित को दिन कढ़ूगा, कुड़ी असी जम्मी, कुड़ी पढ़ाई असी, कुड़ी पाली असी, मकान असी बनाने हैं, पंडित को पुछते नहीं अंदर कदों बढ़ना है, पंडित तो क्यों पूछांगे? ये दिमाग तो लाओ, ये लवादा लाना जरूरी है। जे बाबा साहब अंबेडकर भी पुछन चल जाते ना कि दसो जी पूना पैकर समझौता होना, मेरे कौम नूं हिस्सा मिलना है, ते दिन कर दो। पंडित ने दिन कढ़ना सी, साडे हिस्से दी कढ़ना सी। उन्हें कहना नहीं नहीं, ये तो ग्रह ही बड़े खराब है, ये तो तू जदों साइन करेगा नाल ही मर जाएगा। उन्हें पता कितने वहम पा लेने सी बाबा साहब ते होर तुहाडा वहम कढ़ रहे हैं। सब तो बड़ी गल दसन लगा, सब तो बड़ी, देश की आज़ादी के दिन तो बड़ा दिन तो नहीं कोई हुंदा देश लई। कदों देश आजाद होया? तारीख किहड़ी सी? 15 अगस्त। तुहाडे कोल बड़े बड़े मोबाइल है, आड़े मोबाइल है, ये पिछली डेट भी निकल आती है 100 साल पुरानी, वार भी निकल आता है। हुण 15 अगस्त 1947, 15 अगस्त 1947 भर के तो देखना भी उस दिन की सीगा, किसी देवी का दिन सी कि पीर का दिन सी, दोनों ही नहीं सी, भी देश आजाद हो गया। तो बाबिया का ही बड़ा असर होंगे ना इस एरिया वाले, मज़ारां का बड़ा असर है, मज़ारां का। ते दादू जी की कहते हैं, करे दादू दुनिया बावरी मरिया पूजन ऊठ। ऊठ किनू कहते हैं? सब तो महापुरुष ने। दादू दुनिया बावरी मरिया पूजन ऊठ, जो नखोते मर गए, नखोते भी जिन्हों ने अपने औलाद नहीं सी, जो नखोते मर गए उनसे मांगे ऊठ। देखो जेड़ा नखोता ही मर गया, लाला सुटदा होया मर गया, पागला वांगू घुमदा घुमदा मर गया, नशे दियां सिगटां पींदा मर गया, कहंदे ये मस्त है जी, कहंदे बहुत वधिया है। तो जे बहुत वधिया मैं कहना उन्होंने लोगों को भी, जो बहुत वधिया तो पुत भी यह मंगो, मंगूगा कोई यह पुत भी जिहदियां लाला गिरदियां होण, जिहदी धौन एक पासे गिरी होवे, यह जिहा पुत मंगोगे? पुत तां मंगदे बाबा साहब अंबेडकर ने दा भी सूट बूट टाई वाला पुत आवे, ते जाने बाबियां को जिहड़े लाह सुटदे आ, कहते बाबे को पता किहड़ा गाना या चल रहा, मैं अपने साथियों ने पूछा पता कि कुल्ली चो, फकीर दी कुल्ली चो कहते हैं, फकीर दी कुल्ली चो आवाज आवे अल्लाह अल्लाह। मैं क्या कोठी चो आवाज क्यों नहीं आती? फकीर दी कुल्ली चो आवाज क्यों आती है?
बड़े बंगले चो ये आवाज क्यों नहीं आती? सृष्टिकर्ता वाल्मीकि दयावान भी कहते हैं, कहते तप दान तीरथ से भी मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती। थोड़ी मुक्ति नहीं होनी। मोक्ष मैंने मुक्ति, मोक्ष मैंने वो नहीं कि स्वर्ग चल जाना, स्वर्ग स्वर्ग नहीं होता कोई। मोक्ष मैंने मुक्ति। सृष्टिकर्ता वाल्मीकि दयावान कहते कि तप दान और तीरथ से भी मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती। मोक्ष की प्राप्ति केवल ज्ञान से होती। ज्ञान, पढ़ाई लिखाई, स्कूल जाना। जे बाबा साहब अंबेडकर स्कूल ना गए होंगे, जे विदेशों पढ़ के ना आए होंगे, ते देश का संविधान लिखण दी उन्होंने पावर मिलनी सी। ते जे देश का संविधान बाबा साहब अंबेडकर ना लिखते ते आपां नूं इत्थे बैठण दी इजाजत मिलनी सी? आ पेंटां कमीजां दी इजाजत मिलनी सी? सानूं नहीं सी मिलनी। ये सृष्टिकर्ता वाल्मीकि दयावान कहते कलम राही आंदा ते अज साडी कलम नूं फिर खतरा पै गया। साडे बच्चों की कलम साढ़े 12% जिहड़ा 1974 का बनया है 1975 च मिलिया। एक साल का फाइल ही दबी रखी, उस तो बाद भी मिलिया तो लंगड़ा। कहते नौकरियां च मिलूगा। नौकरी तो बाद चो मंगी नहीं, पर तो पढ़ाई हो गई डिग्री। जिदा आंदा पोस्ट निकली क्लर्क की तो थले लिखा था योग्यता, भी योग्यता BA होवे, टाइप शॉर्ट हैंड आंदी होवे, वो अप्लाई कर सकता है। ते सानू सिक्ख्या च दिता ही नहीं ते देता नौकरियां च खाली। वो कहते पढ़न गए नहीं, आणगे नहीं, नौकरियां मिलदियां ही नहीं। ते जिन्ना कुछ मिलिया हुआ सी नौकरियां च, हुण उहदे उत्ते भी हमले हो रहे आ। सुप्रीम कोर्ट चले गए साडे खिलाफ। साडा ही गलत भाईचारा जिन्हां लई तुसीं लड़ाइयां लड़न जांदे हो, जिहड़े कहंदे आ जाओ भारत बंद करिए। हुण 2 वारी असीं होण नहीं दित्ता, 2 वारी असीं होण नहीं दित्ता भारत बंद। 29 फरवरी का सी, 23 फरवरी का ते 29 जनवरी का सी। एक बामसे वालों सी, एक भीम आर्मी जी चंद्रशेखर चलांगा। दोनों बार मैं कहा साडी सलाह कौन लऊगा? 13 करोड़ की आबादी साडी, साडी सलाह ही नहीं लैंदे, सीधे टीवी ते बयान दिंदे भारत बंद। ते सानू सोचदे तां गुलाम है, पिछे पिछे आणगे। असीं सीधा कहा बिना इस डर तो, जिद्दां बाबा साहब अंबेडकर करते सी, बिना डर तो भी सानू कोई गद्दार कहेगा, बिना डर तो असीं कहा असीं शामिल चावल नहीं। ते परिणाम की होया? परिणाम की होया? आ नौजवान बैठे उन्होंने पता होना परिणाम। जिद्दां दा भारत बंद आपां करदे उदां दा होया? कख भी नहीं होया। इहदा मतलब ताकत किहड़ी कौम कोल है? ताकत वाल्मीकि मजहबी भाईचारे कोल है। जिन्हें को ताकत है, अपनी ताकत ही नहीं पता है। तो उस ताकत नाल हुण 12.5% आपां वापस लैना है। ते कल्ला नौकरियां च नहीं लेना, सिक्ख्या च भी लेना है। हरियाणा सरकार ने भी दिता हुणे 1 महीना पहलों, उन्होंने सिक्ख्या च दिता, नौकरियां च नहीं दिता। पर मैं फिर भी तसल्ली च है, कोई नहीं, जब तक 4-5 साल लगते होंगे बच्चे डिग्री करन दो, फिर लड़ाई लड़ांगे, नौकरियां च भी लवांगे, तो इत्थे भी लवांगे, पूरे देश च भी लवांगे। तां मैं अपनी गल शुरू की सी भी साडे कुलवंत ढंडोवाल जी ने बड़ा प्रयास किया। सिर्फ 4-5 दिन पहलों ही गल हुई सी, गल हुई तो उन्होंने बड़ी मेहनत की और इस इलाके च भी पूरा वो हर सुख दुख च शामिल होंगे है। तो मैं तां आंदे किया भी मैं मेरे सत्संग वो सत्संग ना समझियो भी लै भी ढोलकियां छैने बजाने हैं, ताड़ियां मारनियां है, अखां बंद करनियां है। मैं वो वास्ते नहीं आया, मैं तो तीजा नेत्र खोलण आया। तीजा नेत्र किहड़ा हुंदा है? सिक्ख्या। तीजा नेत्र जिहदे लई बाबा साहब अंबेडकर ने अपने बच्चों की कुर्बानी दी, जिहदे वास्ते योग सिस्टम विच सृष्टिकर्ता वाल्मीकि दयावान कहते हैं कि ज्ञान ही सारा कुछ है, सारे सुख ज्ञान च है। एक जगह का परमात्मा वाल्मीकि दयावान ये लिखते हैं, बीबियां नूं खास तौर पर, बीबियां का दिमाग फिर भी पंडितां नूं चल जाता, सियाणे वाल नूं। वाल्मीकि मां लिख रहे हैं योग सिद्ध, वो कहते 3 लोकां च ऐसा कोई पदार्थ नहीं हैगा जिहड़ा तुसीं पुरुषार्थ राही प्राप्त ना कर सकते। 3 लोकां च तुसीं पुरुषार्थ राही
जो चाहो वो प्राप्त कर सकते। पुरुषार्थ मैंने पहलो पढ़ाई, फिर कमाई, फिर सगाई। पुरुषार्थ मैंने सीधा सिंपल समझ लो। आप अपनी पिंड की भाषा च गल कर रहे हैं। परमात्मा ने जो किया, उन्होंने कहा पुरुषार्थ चार कि धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। उसका अर्थ यही है कि पहलो पढ़ाई, फिर कमाई, फिर सगाई। ते जिहदे तीनों चंगे हो, जिहदी पढ़ाई भी चंगी होवे, कमाई भी चंगी होवे ते ब्याह भी चंगा हो जाए, उसका मोक्ष हो गया कि नहीं हो गया? वो हो गया ना मुक्त। आही रस्ता है। असली सत्संग ये है। वो सत्संग नहीं और जिन्हें ताड़ी नहीं मारी जी वो रात को बाबा आके पढ़ूगा, वो पापी है। वो पापी का ब्राह्मण भी कहते जिन्हें मोटे दुध नहीं पिलाया पापी है। वो एक्सपेरीमेंट से दंगे करांदा, अफवाह फैलांदा ते करते वही अफवाह फैला के दंगे करांदे। ये वहमां भरमां चों बाहर आ जाओ, नहीं तो साडे तो ज्यादा मज़ारां ते कौन गया है, साडे तो ज्यादा देवियां दे कौन गया है, पैदल कौन गया है, लंबे पै के कौन गया है, ते सब तो पिछे कौन है? जवाब लभ लो, जवाब लभ लो। तुहाडे नालों ज्यादा वर्त नहीं किसी ने रखे होने। एक वर्त तो वह होंगे ना जिहदा कोई दिन होंदा भी आ वर्त है, दिन है, होंगे तो भी मूर्खता। गुरु ग्रंथ साहब च लिखा है, गुरु नानक देव जी कहते हैं कि अन्न ना खाए दे दुख दीजे, बिन गुरु ज्ञान तृप्त ना मीजे। वो कहते अन्न ना खा के कुछ नहीं होंदा, आत्मा की तृप्ति नहीं होंदी, देह को दुख दे सकते, और कुछ नहीं। एक तो वह वर्त होंगे जिदा करवा चौथ का वर्त। जनानियां कहदियां आदमी की उम्र बढ़ जूगी, पंजाब वालियां तो फुल स्टॉप लगा दो, पंजाब दियां जनानियां तो फुल स्टॉप लगा दो। आदमी कहता मैं तो कैप्सूल खा के मरना, जा तू रखी जा वर्त, मैं टीके ला ला के मरना। अद्धे तो एयरपोर्ट तो वापस आते जो मैडिकल होंदा है, कहते इहदा वीजा नहीं लग सकता। उत्थे पता लगता मां प्यो नूं भी टीके भी ला रहा है। ਇੱਥੇ ਉਹੀ ਦੇਖੀ ਜਾਂਦੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਦਿਨੋਂ ਦਿਨ ਪੜ੍ਹਨੀ ਕਿਹਦੇ ਮਸਲਾ ਜੇ ਵਧੀ ਜਾ ਰਹੇ। ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਆਦਮੀ ਦੀ ਉਮਰ ਵਧੂਗੀ ਤੇ ਕੱਲੇ ਸੋਚੋ ਇੱਕ ਗੱਲ ਇਨਸਾਫ ਨਾਲ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕੱਲੇ ਪਿਓ ਦੀ ਲੋੜ ਆ, ਮਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਆ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਦੋਨਾਂ ਦੀ। ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਮਾਂ ਵੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਪਿਓ ਵੀ। ਤੇ ਆਦਮੀ ਤਾਂ ਵਰਤ ਰੱਖਦੇ ਨੇ ਵੀ ਜਨਾਨੀਆਂ ਦੀ ਉਮਰ ਵੀ ਵੱਧ ਜਾਵੇ, ਵੀ ਮਾਂ ਵੀ ਰਵੇ। ਇਹ ਛੱਡ ਦੋ ਇਹ ਵਰਤ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਵਰਤ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਦੂਜੇ ਵਰਤ ਮੈਂ ਕਿਹੜੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ? ਦੂਜੇ ਵਰਤ ਤਾਂ ਗਰੀਬ ਦੀ ਔਰਤ ਦਾ ਰੋਜ਼ ਹੀ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਅਚਾਨਕ ਹੀ। ਅਚਾਨਕ ਹੀ ਸਾਡੇ ਵਰਗਾ ਬਿਨਾਂ ਦੱਸੇ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਕਦੇ 10 ਵਜੇ ਰਾਤ ਨੂੰ, ਤੇ ਉਹ ਰੋਲਾ ਪੈਂਦਾ, ਉਹ ਕੀ ਕਰੀਏ, ਕਿੱਥੋਂ ਕਿੱਦਾਂ ਰੋਟੀ ਸਬਜ਼ੀ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰੀਏ। ਤੇ ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਰਿਆਦਾ ਸਿੱਖੀ ਸਾਡੀਆਂ ਬਹੂਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੇ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਹਿੱਸੇ ਦੀ ਰੋਟੀ ਮਹਿਮਾਨ ਦੇ ਅੱਗੇ ਰੱਖ ਦਿੰਦੀਆਂ ਵੀ ਘਰ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਬਚੀ ਰਹੇ, ਸਾਡੇ ਘਰੋਂ ਕੋਈ ਭੁੱਖਾ ਨਾ ਚੱਲੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਤ ਤਾਂ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਤੁਹਾਡਾ ਵਰਤ ਤਾਂ ਉਧਰ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਜਿੱਦਾਂ ਆਦਮੀ ਸ਼ਰਾਬੀ ਹੋ ਕੇ ਘਰ ਆ ਕੇ ਲੱਤ ਮਾਰਦਾ ਇੱਕ ਦਰਵਾਜ਼ੇ 'ਚ ਤੇ ਇੱਕ ਜਨਾਨੀ ਦੇ, ਉਧਰ ਵੀ ਵਰਤ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਵਿਚਾਰੀਆਂ ਬਿਨਾਂ ਖਾਧੇ ਸੋ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਇਹ ਵਰਤ ਵੁਰਤ ਰੱਖਣੇ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਬਾਬੇ ਬੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਛੱਡ ਦਿਓ। हाँ कभी कभी खाना वैसे छो, सेहत अच्छी हो जाती है। मैं दोपहर को खाना खाता ही नहीं। मैंने कहते क्यों नहीं खाते? मैं कहा बड़े ढिड वाला बाबा बन जाऊंगा है ना, फिर गलबात बिगड़ जाएगी सारी। मैं रोटी 2 खानी है, 2 तो वध खानी नहीं, ताकि मैं जिन्ना ज़्यादा चलता फिरदा रहूँगा उन्ना ज़्यादा काम करूँगा। तो फिर बह जाऊँगा, लोगों को कौम ही आवे। हूँ तो ऐदा के बाबे होंगे ढिड एडा होंगे, पैर भी नहीं लभदे भी बाबा जी पैरी हथ कित्थे लाइए, लोग ढिड नूं हथ ला के आ जाते हैं। तो मसला भी बाबे के ढिड का ही होंदा है। ये छड्ड दो सारे पैसे पूरे अपने बर्बाद करने, अपना पैसा बच्चों की सिक्ख्या लई रखो, पढ़ाओ लिखाओ इन्हां नूं। किसी बाबे की लोड़ नहीं। जिद्दन तुहाडे बच्चे अफसर बन गए, तुहाडा जीवन भी बदल जाएगा। आदमियों की उम्र आपे बढ़ जाऊगी। जिहदा मुंडा इंस्पैक्टर लग गया, वो दादे की उम्र बढ़ जाएगी कि नहीं बढ़ जाएगी? वो खुशी च तुरया करना कि मेरा पोता इंस्पैक्टर बन गया, वो उम्र आपे बढ़ जानी। इस करके सारे पखंडा चो बाहर आ जाओ।
लड़ाई डबल शुरू हो गई है देश की आज़ादी की लड़ाई भी शुरू हो गई, जिस असी अपने आप को इस देश के दावेदार साबित करना है, वो लड़ाई भी शुरू हो गई। तो दूजी जी साडी हिस्सेदारी की लड़ाई से वो लड़ाई भी शुरू हो गई है। दोनों लड़ाइयाँ लड़ांगे इकट्ठे होके, और ये लड़ाई इदा भी लड़नी, इतने बहुत सारी संगत बैठी है भी फेसबुक ते ना पा दिओ जाते किस दिन भी लो जी रावण जी ने कह गए सी लड़ाई है तो इन्नी तरीक में चलो भारत बंद कर ले कहता, फिर कौन नहीं हूँ तो असी पार्टी हूँ लाज रखो कौम की। इदा ना करया करो। असी पहलों भी मीटिंग बुलाते होंगे सी, जो मोबाइल नहीं होंगे असी उदों भी मीटिंग करते होंगे सी ते पूरा पंजाब इकट्ठा कर लेंदे होंगे सी। ते जिन्नियां सभावां, जिन्ने संगठन, जिन्नियां यूनियनां, उन्हां सारियां दी राय लैके वड्डी लड़ाई लड़ांगे और जितांगे। ते अज दा बहुत बहुत तुहाडा धन्नवाद, खास तौर पर कुलवंत जी ते उन्हां दे साथियां दा, पूरी टीम उन्हां दी इत्थे खड़ी सी बाहर, जिन्हां ने बहुत 2-4 दिनां दे उपराले। ते अंत च अपील मेरी कि 29 मार्च का इस महीने 29 तरीक संडे का दिन है, बच्चों के लिए सैमीनार है 8वीं तो उपर बच्चों ने, क्योंकि पढ़ाई लिखाई भी जरूरी है तो पढ़ाई लिखाई केड़ी जरूरी है ये दसना भी जरूरी है। कई पढ़ाइयां ऐसिया जिन्हों की नौकरी नहीं मिलती, मुड़ के केड़ी पढ़ाई सानू नौकरी वाल लै जूगी, ये सैमीनार च दस्या जाता है। ते 8वीं तो उपर जिहड़े बच्चे आ, नाल 2-3 सियाने बंदे आ जाओ, बच्चे ज्यादा लियाओ। जलंधर सैमीनार होना है, देश भगत यादगार हॉल है, बस स्टैंड के नेड़े है, बिल्कुल सीधा जिहा एड्रैस है, उत्थे सैमीनार रखा है। तो उहदे वास्ते मीटिंग करनी सी, अस तो छोटी जी मीटिंग ही सोची सी, पर कुलवंत जी ने बड़ा उपराला कर रहा, वो हिम्मती है, बड़ा उपराला कर लिया, सारा बुला लिया, अच्छा लग्या। तो मैनू भी थोड़ी ज़्यादा गल करने का मौका मिल गया भी थोड़ा होर इतिहास से पिछले शुरू करिए। तो 29 मार्च का जलंधर शिक्षा सैमीनार सवेरे 10 बजे शुरू होएगा। क्लास है, वो भी एक क्लास है, टीचर आएंगे, दिल्ली तो भी टीचर आएंगे, पंजाब के टीचर भी होंगे, उस यूनिवर्सिटी तो भी टीचर आ रहे हैं, जी यूनिवर्सिटी का सब तो ज़्यादा नाम आता हूँ टीवी JNU, जिथों कन्हैया, उत्थे की टीचर भी आ रही है। तो साडे बच्चों नाल गल करनगे, बिल्कुल सहज गल, जिद्दां अपनी मां नाल करते हो, अपनी भैन नाल करते, इदां ही टीचर तुहाडे नाल गल करनगे। तो उस सैमीनार च लैके आओ, आपां दोनों लड़ाइयां लड़नियां हैं, धर्म की लड़ाई भी, अधिकारां की भी ते सिक्ख्या की। इन्हां शब्दां नाल, इस प्रार्थना दे नाल कि तुसी सारियां ने बहुत एक शांति भी और पूरा समा भी गल नूं ध्यान दे नाल सुनिया, ते जिहड़े साथियों ने उपराला किया, वो सारे साथियों का बहुत बहुत धन्नवाद करते हुए तुहाडे सारियां च विराजमान आदि अनादि परमात्मा नूं सादर नमन। जय हो।